মোৰো Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. পবিত্ৰ 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 সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ যহোৱা আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু আপোনাৰ স্তুতি আপোনাৰ মহিমা আপোনাৰ গৌৰৱ আৰু আপোনাৰ প্ৰশংসা হওক আপোনাৰ পবিত্ৰ নামটো যুগে যুগে থাকক আৰু প্ৰত্যেক প্ৰাণীয়ে যে আঁঠুকাৰি আপোনাৰ পবিত্ৰ নামত পিতা পৰমেশ্বৰ সেৱা কৰক প্ৰণিপাত কৰক কিয়নো আপুনি ধন্যবাদ পোৱা যোগ্য ইছলে আমি আপোনাৰ পবিত্ৰ নামৰ যোগ্য নহয় কিয়নো আমি পাপী অহুচি সুদ থকা মানুহ অনাৰ্থক পাপ কৰি থাকোঁ অনাৰ্থক কথা আলোচনা কৰোঁ যিমান দায় দুখ কৰিছোঁ মোৰ ভুল পান্তি আৰু ইয়াত বহি থকা যিমান ভাই ভনী হিচাপে আপোনাৰ ওচৰত মূৰ দুৱাইছে লগতে অনলাইন যোগেদি থকা যি অহুচি আত্মাই প্ৰাৰ্থনা গীৰ্জা কৰিবকে নিদিয়া আত্মিকতাত আত্মাত সেৱা কৰিবকে নিদিয়া মন খেলি মেলি কৰা হেৰি অহুচি আত্মা প্ৰভু যীশুৰ ইয়াত বহি থকা ভাই ভনী প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ পৰা অহুচি আত্মা চব যীশুৰ নামৰ পৰা ওলাই যা অনলাইন যোগেদি যে যোগদান কৰি আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই পেলাই দূৰাই যা যিমান চাউণ্ড চিষ্টেম চব বেয়া কৰি দিয়া আৰু ইয়াতে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি বাধা দিয়া আত্মা চব যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা ওলাই দূৰাই যা হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই মত আহক আপোনাৰ পিতা তেজেদি আমাক ধুই কুচি পবিত্ৰ কৰক প্ৰভু যীশু এমই যি সন্তানে আপোনাৰ জীৱন জল বাক্য আপুনি দিব আহক প্ৰভু আমাক সেই জীৱন জল দিয়ক যিটো আমি খাই তৃপ্ত হৈ পেলাই ধন্যবাদ দিব পাৰিম আৰু আপোনাৰ ওচৰত চাপিব পাৰিম আৰু প্ৰত্যেকক আপোনাৰ পবিত্ৰ হাতৰ তলত সদাই দিছোঁ প্ৰাৰ্থনা নাজাৰত প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ আমেন প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ধন্যবাদ দিছোঁ এতিয়া সময়টো পাছি আমি সুন্দৰ বাক্য এতিয়া শুনিম আহক কৈ যি পবিত্ৰ বিশ্ৰাম বাৰ পালন কৰিবৰ কাৰণে আমাক ইয়াত লগ কৰিবলৈ দিলে ধন্যবাদ দিছোঁ सभी को स्वागत करता हूँ यीशु मसीह का नाम से और आज जो डे है और प्रभु आज हमें सभी को आशीष दे और आशीषित करे क्योंकि आज का दिन जो है वो यहोवा ने बनाया है पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो फेसबुक पर है सुबह उसको लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसमें इंटरनेट जो पोर कनेक्टिविटी के वजह से फ्लक्चुएट हो रहा है आप लोग उसको निराश मत होइए और रिकनेक्ट हो जाते हैं आप लाइन पे बने रहेगा जितना भी भाई लोग फेसबुक के द्वारा यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं ये क्योंकि ये जो बफरिंग होने से वो आपको क्या होगा वो चलते रहेगा आप उसमें बना रहिए प्रभु आप लोग को आशीष दे ये इंटरनेट हम लोग का सही नहीं है और ये जो हम लोग सर्विस भी आप लोग बने रहिए प्रभु आज इस वचन आज जो वचन हम लोग लाए हैं आज जो हम लोग ये प्रभु का स्तुति लाए हैं इसके द्वारा प्रभु का महिमा होगा शैतान नहीं चाहते हैं प्रभु का महिमा दे शैतान नहीं चाहते हैं कि हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें लेकिन हम लोग का जो कर्तव्य है चाहे जितना भी बाधा चाहे जितना भी समस्या आए कभी ना छोड़ेंगे हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कभी এটা গীত গাম আমি অসমীয়া ধৰ্মগীতৰ 125 নম্বৰ আৰু এটো আমি when the roll is called up yonder প্ৰভুৰ আগমনৰ দিনা দুতব জেৰত গোট খাব যেতিয়া নাম মাতিব ময়ো হাজিৰ হম যেতিয়া নাম মাতিব স্বৰ্গত যেতিয়া নাম স্বৰ্গত যেতিয়া স্বৰ্গত যেতিয়া নাম মাতিব ময়ো হাজিৰ হম সেই উদ্ধাৰ হ'ব যেতিয়া নাম মাতিব ময়ো হাজিৰ হম যেতিয়া নাম মাতিব স্বৰ্গত যেতিয়া নাম মাতিব স্বৰ্গত যেতিয়া নাম
মাতিব ময়ো হাজিৰ হওঁ পুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে প্ৰভুৰ কাৰ্য কৰোঁ হওক তেওঁ যেতিয়া নাম মাতিব স্বৰ্গত যেতিয়া নাম মাতিব স্বৰ্গত যেতিয়া নাম মাতিব স্বৰ্গত যেতিয়া নাম মাতিব ময়ো হাজিৰ হওঁ প্ৰেজ দ্য লৰ্ড टॉपिक तो ऐसे होप आशा आज हम लोग जो वचन जिस टॉपिक का ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रभु का वचन के माध्यम से उस जो टॉपिक वर्स 13 रोमिया 15 अध्याय 13 पद May the God of hope fill you with you trust in him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. NIV Bible পৰা মই পাঠ কৰি দিম ৰোমিয়া 15 অধ্যায় 13 পদ এতেকে তোমালোক পবিত্ৰ আত্মাৰ মহিমাৰে যেন আশাত উপচি পৰা এই কাৰণে আশাৰ আকৰ ঈশ্বৰে তোমালোকক বিশ্বাস কৰা hope বা আশা God is the word of hope परमेश्वर जो है जहाँ से विश्वास उत्पन्न होता है आशा जोर পৰা उत्पन्न হয় যাৰ পৰা খান্দি ওলাব পৰা যায় য'ত আছে অজস্ৰ পৰিমাণে হে হৈছে ঈশ্বৰ Hebrew chapter 6 verse 19 हम इस वचन को आपका साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोग इस वचन को जब स्टडी करेंगे आप कम से कम 2-3 बाइबल को आप उसमें कंपेयर कीजिएगा क्योंकि इसमें मेरा बाइबल तो है नहीं लेकिन मैं कभी ESV कभी हम NIV कभी किंग जेम्स कभी न्यू किंग जेम्स तो अलग जो सही मीनिंग आउट होता है मीनिंग निकल के आता है मैं उसको आपका पास लेके आता हूँ सो लेट मी शेयर विथ यू द वर्ड Hebrew chapter 6 verse 19 we have this hope as an anchor for the soul the inner sanctuary behind the curtain इस वचन को जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बहुत खुश हो गया कि आशा ऐसा एक चीज है एंकर जहाज बड़े बड़े जहाज को रुका के रखने के लिए क्योंकि जहाज में जो जल का लहर हमेशा जो वेव जो फ्लो होते रहते हैं उस वेव में एक जहाज को अपने स्थान पर रखने के लिए ऐसा कोई भी ताकत नहीं है आप हवाई जहाज को आप जब एयरपोर्ट में रखते हो तो उसके लिए आप लोग हम लोग क्या जो एयरपोर्ट जितना भी ब्रेक वगैरह लगाते हैं हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को अपने स्थान पर हम लोग खड़े कर देते हैं लेकिन जो वेव जो लहर होता है समुंदर का उसमें जहाज को उसको स्थिर रखने के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है ब्रेक वगैरह नहीं है लेकिन उसको अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा करने के लिए पकड़ के रखने के लिए অসমীয়াত লংগৰ বুলি কোৱা হৈছে এংকৰ হোৱাট ইজ এংকৰ এংকৰ কি হয় বা এইটো লংগৰ কি হয় যদি আমি তাৰ বিষয়ে কিছু চাবৰ কাৰণে যাওঁ এটা কাইট নিচিনা ঠিক তেনেকুৱা কাইট মাছ ধৰিবলৈ যোৱা মানুহসকলে যি বৰষা ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এটা লোহাৰ টুকুৰা আৰু সেই টুকুৰাটো হিকলি আৰু ৰছী সংযুক্ত কৰি জাহাজৰ এটা স্থানত বান্ধা হয় আৰু যেতিয়া জাহাজখন তেতিয়া এই লংগৰ বা এংকৰ নমাই দিয়া হয়
আৰু এই লংগৰ বা এংকৰে পানীৰ তলত থকা সাৰফেস যেটো তলত সিবেড যেটো তলত একেবাৰে তাত এই এংকৰ বা লংগৰে খামুচি ধৰে It is very important. A very big heavy ship, it can be held by an anchor. বিশাল জাহাজ এখন এংকৰ এডালৰ যোগেদি ৰখাই থব পৰা যায় পাৰাকৈ মজবুতে নিজৰ জায়গাত এই জাহাজখন স্থিৰে থাকে কেৱল এংকৰ বা লংগৰৰ যোগেদি Here in this verse we have this hope is an anchor. If an anchor can hold a very big huge ship, so how much we have hope in Christ that it cannot be shaken. इतना बड़ा और जब समंदर में एंकर को वो जहाज हिलते डुलते नहीं है क्योंकि वो एंकर सतह पर जाके ओ मिट्टी को या पत्थर को या बालू को वो पकड़ लेते हैं जब जहाज उसको हिलने के लिए जब जहाज वेव में पानी का लहर में हिलते हैं वो जितना हिलेंगे वो एंकर और लंगर इतना ही मजबूती से अपने मजबूत how it is tremendous it is very important to have this kind of faith in our life hope in our life how beautiful to compare কিমান সুন্দৰ ভাবে আশা লগত লংগৰ আশাটো আমি আশা কৰি আছো আমি আজি বাট চাই আছো আজি আমি আশা লগাই আছো এই আশা কেনেকুৱা ধৰণৰ বাইবেল আমাক কৈছে এটা ডাঙৰ লংগৰ বা এটা এংকৰৰ নিচিনা that hope but there are many different kind of definitions in the Bible hope is the same but you will find different type of definitions in the Bible if you read Proverbs 13 verse 12 the Bible says hope is the tree of जो है वो एक जीवन का ब्रिक्स है रोमन चैप्टर 8 वर्सेस 23 से 25 अगर पढ़े आशा जो है और उद्धार पाने का जो उद्धार पा लिया टू बी सेव्ड रक्षा हो गया उद्धार पा लिया रोमन चैप्टर 8 वर्स 28 में लिखा है टू लव गॉड होप द अनदर मीनिंग ऑफ होप इज टू लव प्रभु का ऊपर फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16 में लिखा है टू कीपिंग जीसस इन हार्ट अपने दिल पे अपने प्रभु यीशु मसीह को रखना इसी को आशा कहा जाता है टू वेट फॉर द हेवन हम लोग अपेक्षा कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए हेवन में घुसने के लिए तो इसीलिए आशा जो है होप जो है इसको बाइबल कहती है इसमें आप फिर से हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 19 को देखिए इट इज फर्म एंड सिक्योर आशा जो है इट इज सही स्थान पे उसको पकड़ रखने के लिए और एंकर है और इतना मजबूत है और सुरक्षित है जिसको सुरक्षा देने वाला जिसको पीछे घुसने के लिए आपको ले जाते हैं किसके द्वारा ये आशा के द्वारा होप के द्वारा यू कैन एंटर इन द इनर सेंचुरी थ्रू होप ओनली आप आशा के द्वारा आप इनर सेंचुरी में आप अति पवित्र मंदिर में एक जो इसको मंदिर बोला जाता है उसमें 3 किस्म का चीज था एक हो गया कोर्ट एक हो गया होली प्लेस और दूसरा हो गया मोस्ट होली प्लेस मोस्ट होली और मोस्ट होली उस दोनों का बीच में एक कर्टेन लगाया जाता था और उस कर्टेन का उस तरफ पर्दा का उस तरफ परमेश्वर का उपस्थिति रहता है और इसीलिए जो पुरोहित जो प्रीस्ट not only a simple priest but the high priest he enters once एक ही बार प्रवेश करता है इन ए ईयर एक इजराइल लोगों का पाप का माफी मांगने वाला लहू को लेके
द ब्लड ऑफ एटोनमेंट, उसको लेके पर्दा का पीछे रहने वाला जो आर्क ऑफ कवेनेंट, उसमें वो अपना लहू पर, जो लहू है जो इजराइल जाति का पाप के लिए लेके जाते हैं, उसको छिड़क देते हैं वंस इन ए ईयर। लेकिन आपका जो आशा, विश्व, जो परमेश्वर जिस आपको होप आपको दिया है, वो होप बाइबल कह रही है उस आशा स्थान में आपको बिहाइंड द कर्टेन, मतलब आप जिस जगह में नहीं जा सकते हैं इन जनरली, लेकिन विश्व आशा के द्वारा आपको वहां तक ले जाया जाता है। इसीलिए होप इज एन एंकर, आशा जो एक लंगर है, किसका? सोल का, आपका प्राण का लंगर है। सो वेयर डज होप कम फ्रॉम? अभी आशा कहां से आती? आशा कहते हैं Psalm number 39 verse 7, and now O Lord, for what do I wait? My hope is in you. Ephesians chapter 2 verse 12, आप दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको एक बात को पता चलेगा, hope comes from the Lord. आशा, जो होप आपका अंदर में पैदा हो रहा है, वो होप अलग किस्म का होप। तो सबसे हम लोग का होप क्या है कि हम लोग यीशु का साथ एक दिन प्रभु क्राइस्ट, वी हैव द होप, हमारा आशा है। मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनता है, ये मेरा आशा है, कर रहा है, ये मेरा आशा है। मेरा परिवार में प्रभु काम कर रहा है, ये मेरा आशा है। मेरा जो मेरा सोसाइटी में प्रभु काम करेगा, ये मेरा आशा है। इसीलिए परमेश्वर जो आपको आपका दिल में आशा पैदा करता है, होप, ही लीडेथ कॉन्फिडेंस, विश्वास भी है, आशा भी है कि प्रभु मुझे चला रहा है। अगर कहीं धुमुहा, मतलब अगर बड़ा सा तूफान आए, या मैं कहीं ऐसा गहरा समुद्र का बीच में भी जाऊं जहां हिलडुल हो रहा है, जहां ये समुद्र का लहर comes from the Lord only, विश्वास प्रभु से आता है और आपको विश्वास प्रभु का ऊपर ही रखना है। Important part of my sermon to be remembered, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आप पहुंच चुका हूं, ये है हाउ वी विल गेट होप। हमें विश्वास कैसे होगा, हमें विश्वास कैसे पैदा होगा, या परमेश्वर से में कैसे होप या आशा पैदा होगा, उसको हम लोग कैसे जनरेट करेंगे। विश्वास तीन किस्म से आपका हृदय में पैदा होगा। नंबर 1, यू हैव टू बिलीव पेशेंटली। बिलीव पेशेंटली, विश्वास करना है, लेकिन आपको धीरज भी रखना है। बिलीव, विश्वास को राखिब লাগিব और धैर्यও राखिब লাগিব। अधैर्य मानुहे বিশ্বাস কৰিলে সেইজন মানুহে তেওঁৰ আশা উৎপন্ন নহয়, তো হেৰুৱাই পেলাই নিজৰ কাণ্ড জ্ঞান বা নিজৰ অধৈৰ্য হৈ যায়, ধৈৰ্য হেৰুৱাই পেলাই। তেনেকুৱা মানুহৰ বিশ্বাস বা তেওঁ ঈশ্বৰৰ ওপৰত ৰাখিলেও তেওঁ আশাটো নহব, তেওঁৰ আশাটো ভাঙি যাব বাৰে বাৰে। কিন্তু বাইবেলে কৈছে বাই বিলিভিং পেশেন্টলি ইউ ক্যান জেনারেট হোপ होगा। हेब्रू चैप्टर 6 वर्सेस 11 to 20 अगर आप पढ़ेंगे, इसमें हेब्रू चैप्टर अब्राहम का बारे में,
अब्राहम का बारे में लिखा है। अब्राहम ने क्या किया, आप पूरा पढ़ते जाएंगे। अब्राहम ने क्या किया, वर्स 13 को देखिएगा। When there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम से बात किया, परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया जहां चारों ओर आइडल वर्शिप किया जाता था, उनका बीच में अब्राहम जो सच्चा परमेश्वर को हमेशा ढूंढने वाला था, वो परमेश्वर को ढूंढता था, वेयर इज गॉड, और वो परमेश्वर उसने दिया, मैं ही परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर कहा कि वो अपना परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, अपना परमेश्वर को साथ चलने के लिए, वो अपना सब कुछ ज्ञाति कुटुंब जो भी है सब कुछ छोड़ के वो परमेश्वर का पीछे हो लेना है। ये आप और मेरे लिए बहुत कठिन होता है जब हम लोग के लिए परमेश्वर ऐसा एक प्रोफेसी आता है या हम लोग के लिए परमेश्वर से कुछ रेवलेशन देता है, तो ये हमारे लिए तकलीफ होता है। हम लोग सोचते हैं ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब्राहम परमेश्वर का आवाज को सुना, पहले उसमें विश्वास किया और उसका बाद उसने उसमें एक्शन किया। He heard first, पहले उसने सुना, then he will। अब्राहम को बोला, तुम इस देश से, इस अपना जगह से निकल के चला जाओ और तुम जो जगह मैं दूंगा, जो देश में मैं तुम्हें दूंगा, उस देश में तुम चला जाओ और मैं तुम्हें बहुत जाति का पिता बनाऊंगा। एक भी बच्चा नहीं था, उसका उम्र भी हो चुका था। ऐसे एक परिस्थिति में परमेश्वर का वचन का सुनने का जो साथ उसमें क्या किया, और बहुत धीरज के साथ बिलीव किया और उसमें एक्शन किया। उसने बिलीव, पेशेंट, हाँ ठीक है प्रभु ने कहा है, ठीक है प्रभु मैं मानता हूं। जब उसने अपना परिवार को त्याग के अब निकल जाने के लिए उसने जब बताया प्लान को सबको, हर एक अब्राहमक माना কৰিলে কি জানি, তুমি নকৰিবা, ক'ত জবকে পৰিস্থিতি কি হ'ব তুমি নাজানা, বেলেগ এখন দেশত তুমি গৈ আছা, নাযাবা। কিন্তু তেওঁ ঈশ্বৰৰ মাতটো শুনিলে, তেওঁ ঈশ্বৰৰ মাতটো শুনিলে, আৰু ঈশ্বৰৰ মাতটো শুনাৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত তেওঁ বহুত ধৈৰ্য ধৰিলে, আৰু hope generated in his heart. There is hope, আশা উৎপন্ন হ'ল। মোৰ ঈশ্বৰে মোক কৈছে, মই যদি ইয়াৰ পৰা ওলাই তেওঁৰ বাক্যটো শুনি ওলাই তেওঁৰ বাক্য শুনি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ মোক এটা জেগা দিব, থাকিব দিব, আৰু মোৰ সন্তান হ'ব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। এইটো কিমান আচৰিত কথা। আপুনি আৰু আমি আজি আমাৰ জীৱনত বিশ্বাস কৰা বাইবেলখন আমি অধ্যয়ন নকৰোঁ, আমি বাইবেলখন পঢ়িবলৈ কাৰণে আমি টান পাওঁ, আমি বেলেগ কিতাপবিলাক পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, আমি পৃথিৱীৰ যিমান আমাৰ ৰংগৰকবিলাক আছে তাতে আনন্দ পাবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ, আমি সকলো টিভি নাভাবোঁ, তাত আমি মানিবৰ কাৰণে, তাক বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে আৰু ধৈৰ্য ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সময় বহুত কম। ধৈৰ্য ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সময় নাই, ধৈৰ্য নাই। আমাক এতিয়াই লাগে, ইমিডিয়েট এতিয়াই হ'ব লাগে, अभी चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए। हम लोग लेकिन बाइबल कहती है जब मोसेस एनकाउंटर हुआ उसका उम्र 40 इयर्स था, और 40 साल का उम्र में मोसेस को जब परमेश्वर ने बोला कि तुम उसमें चला जाओ मिस्र में, और मिस्र में जाके तुम फिरौन से बात करो, उस समय उसका उम्र था 40 इयर्स। और इजराइल लोगों को जब निकाल के लाने का वक्त उसका उम्र उसने बहुत ही धीरज के साथ परमेश्वर से बात करते हुए, परमेश्वर का जो आवाज सुनते हुए, परमेश्वर से जैसे उसका मिराकल जो करते हुए 40 साल गुजर दिया। 40 + 40 आया, परमेश्वर का साथ टाइम दिया। आज विश्वासी लोग, आज हम लोग का अंडर में होप नहीं है, आशा नहीं है। हम लोग का सिर्फ एक कहावत है, मुंह से हम बोलते हैं कि हम लोग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आप जो बिल्कुल को बचाने वाला एक लंगर है या नहीं है, इज योर होप इज एन एंकर टू सेव योर सोल और नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Whether your faith, your hope can protect or save your soul from the danger. जिस दिन प्रभु का जजमेंट डे होगा, उस दिन में आपका विश्वास जो होप है, आशा जो है, ये आशा आप जो प्रभु पे आशा में रखा था वो की करिब अपना अतराय ले जाओ। नंबर 2, hope will generate
by the word of God. এটা হৈছে আপুনি শুনিব লাগিব আৰু আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব দ্বিতীয়টো হৈছে আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ যোগেদি আপোনাৰ কি হ'ব verse 4 For everything that was written in the past was written to us, teach us, so that through endurance and the encouragement of the scriptures we might have hope. So we need to study the New Testament only. बहुत सा व्यक्ति लोग प्रचार करते हैं, बोलते हैं पुराना नियम तो पुराना नियम में था, उसको अभी हम लोग जरूरत नहीं, अभी हम लोग नया नियम का व्यक्ति। मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, a Bible cannot be written a holy Bible without the both testament. अगर उसमें पुराना या नया करार दोनों नहीं रहेगा, आप सिंपल ओल्ड टेस्टामेंट को लेके आप रखेंगे, it cannot be called a holy Bible. Or if you keep the New Testament only, you cannot say it is a holy Bible. A holy Bible is a Bible Testament. It's a compilation. दोनों एक साथ मिलाने से आपको होली बाइबल कहा जाएगा। और पुराना नियम को आपको रखना या पढ़ना इतना जरूरी है क्योंकि उसमें जो जो काम वो एक एग्जाम्पल है, वो एक उदाहरण है। जैसे disobeying God's commandment, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानने से क्या होगा। परमेश्वर की तरफ देखेंगे, आदम और ईव का बारे में हम लोग पता चलता है, वो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, उसने एप्पल को जो फ्रूट को खाने के लिए माना किया, उसी फ्रूट को खाया और फ्रूट को खाने का बाद वो पाप किया। जोना के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम निनवा टाउन में जाओ और मेरा वचन को प्रचार करो क्योंकि मैं थोड़े ही दिन में निनवा जो नगर है। लेकिन जोना ने परमेश्वर का बात को नहीं माना और उसने जहाज पे चढ़ते हुए और टर्सिस की तरफ दूसरा जगह उसने भागने के लिए कोशिश किया। लास्ट में क्या हुआ? हवा तूफान आया और उसको जोना को उठा के समंदर में फेंक दिया गया और एक बड़ी मानने का वजह से जोना 3 रात 3 दिन मछली का पेट का अंदर में था। सफोकेशन, कितना तकलीफ, अंधकार रोशनी है, ना कोई बिजली का बत्ती जलता है, ना उसमें आपको ठंडा का एसी मिलता है, ना उसमें आपको कुछ कंफर्ट मिलता है। मछली का पेट का अंदर में वो कितना एक उसमें कंप्रेस में वो था, लेकिन उसका सांस चल रहा था और उस जो सांस चल रहा था उसी में से वो परमेश्वर का आगे माफी मांग रहा था। इसीलिए वो एक एग्जाम्पल है, रखा गया है। देयर इज ए डार्कनेस, देयर इज ए डूम, एक अंधकार रखा गया है। उस अंधकार में आप एक दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ आवाज, आपको तकलीफ मिलेगा, आपको जलन भी होगा, आपको कीड़ा लोग खाएगा, आपको अत्याचार होगा, आप चिल्लाओगे, ऐसा जगह में आप जाओगे। इफ यू disobey God's commandment, so this is the, if you read the word of God, आपको आशा होगा। जब इजराइल लोग परमेश्वर का वचन को माना, जब परमेश्वर ने मोसेस को भेजा और जो आचरित काम किया, इजराइल लोग उसको जब माना तो दासत्व से, बंदेश से सबको उठा के लेके आया प्रभु ने और बंदेश से निकाल के लेके आया। इजिप्ट का मतलब हो गया बंधन, बाइंडिंग, या उसको बोला जाता है जिसको क्या बंधन में रखना। लेकिन परमेश्वर उसमें से सबको निकाल के लेके आएगा। क्यों? वो लोग आशीष किया, उससे उनका आशा जो होप उसने बढ़ गया और इसने वो लोग निकाल के चला आया। आज आपका दिल में आशा कैसे बड़ा होगा, आशा कैसे बढ़ेगा? आप जब परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। नंबर 3, ডাঙৰ আশা, বহুত ডাঙৰ আশা আমাৰ জীৱনত উৎপন্ন কৰে ঈশ্বৰৰ কাৰণে। Romans chapter 15 verse 13, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so of the Holy Spirit. পবিত্ৰ আত্মাই উপচি পৰিবলৈ দিয়ে। Praise the Lord. Overflow जो होली स्पिरिट आपका लाइफ में जब आएगा या आप जब पवित्र आत्मा से भरेंगे, और पवित्र आत्मा आपका अंदर आप जो आशा जो है ओवर उपसी पड़ा को अपनी धैर्य धरी ईश्वर वाक्य শুনিছে, ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি ধৈৰ্য ধৰিছে, আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য আপুনি ধ্যান কৰিছে আৰু লগতে যেতিয়া আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব। Yes Lord,
এইখিনি সময়ত মোক পবিত্ৰ আত্মাৰে তুমি পৰিপূৰ্ণ কৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিব। সেই সময়ত পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ ভিতৰত আহিব আৰু পবিত্ৰ আত্মা অহাটো এটা সাইন হয়, সাইন যে মই আছো। যিদৰে মই প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যে তোমালোকৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে এজন সহায়কৰ্তা শান্তিৰ আত্মা পঠাই দিম, সেই বাক্যটো পৰিপূৰ্ণ কৰিছে যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ জীৱনলৈ আহে। যেতিয়া আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰ প্ৰভুৱে কোৱা সেই বাক্য যদি পবিত্ৰ আত্মা পঠাই দিম কোৱাটো যদি মোৰ জীৱনত পুৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে বাইবেলৰ আন যিমান কথা ইয়াতে লিখা আছে আহি থকা দিনবিলাকত পুৰা হ'ব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সেইটোৱে হৈছে আশা। থ্ৰু হলি স্পিৰিট হোপ উইল অভাৰফ্ল' ইন ইয়ৰ লাইফ থ্ৰু হলি স্পিৰিট। বহুত শিক্ষকবিলাকে পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে আঙনি দিয়ে। হোৱাট ইজ হলি স্পিৰিট? পবিত্ৰ আত্মা কি হয়? Ezekiel chapter 36 verse 27, the Bible says, it is my spirit. God says, it is my spirit. ঈশ্বৰে কৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ আত্মা। এক নম্বৰ, পবিত্ৰ আত্মা কোন হয়? পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰৰ আত্মা। দুই নম্বৰ, পবিত্ৰ আত্মা কোন হয়? পবিত্ৰ আত্মা সত্যৰ আত্মা। 3 নম্বৰ, Romans chapter 8 verse 9 কোন হয়? পবিত্ৰ আত্মা খ্ৰীষ্টৰ আত্মা, স্পিৰিট অফ খ্ৰাইষ্ট। গতিকে পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ আত্মা আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে, ইট ইজ দ্য স্পিৰিট অফ গড কামিং ডাউন from God into your life. Holy Spirit, পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰৰ পৰা ওলাই অহা তেওঁ পাৰিব। এই পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাৰ ভিতৰত এটা বস্তু আপোনাক উৎপন্ন কৰিব আৰু সেই বস্তুটো হৈছে আশা। য়েছ, মই পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছোঁ আৰু ঈশ্বৰে মোৰ জীৱনত তেওঁৰ সকলো এইটো কি কয় ঈশ্বৰে আজি আমাৰ জীৱনত দিছে যিবিলাক তেওঁ বাক্য। বাইবেলত তেওঁ কৈছে Acts chapter 1 verses 4 and 5, do not leave Jerusalem. জেৰুচালেম এৰি নাযাবা। কেলে? মই যিটো আত্মা পঠাই দিম, ঈশ্বৰে যিটো আত্মা তোমাক পঠাই দিব, সেই আত্মাটো নহালৈকে জেৰুচালেম এৰি নাযাবা। দিবা 2 ভাৰ্চটোত লিখা আছে পবিত্ৰ আত্মা তেতিয়া 120 জন মানুহৰ ওপৰত নামি আহিলে। সেই পবিত্ৰ আত্মা আজিও আমাৰ মাজত আছে আৰু সেই পবিত্ৰ আত্মা আজিও আপোনাৰ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিব কাৰণে বিচাৰিছে আৰু সেই পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাৰ জীৱনত আশা আপোনাৰ জীৱনত আছে। সেই আশাৰ পৰা আৰু বেছি বঢ়াই দিব আপোনালৈ আহিছে। তেতিয়াহ'লে বাইবেলৰ আন যিমান প্ৰতিজ্ঞাবিলাক আছে এই সকলোবিলাক মোৰ জীৱনত পূৰা হ'ব, কিয়নো পবিত্ৰ আত্মাই আমাৰ ভিতৰত থকা আশাটো বৃদ্ধি কৰে, বঢ়াই দিয়ে। আজি এই বাক্যই আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ কৰক, কিয় होप का बारे में सिखाया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष दे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हमें प्रार्थना को आग बढ़े जाम। हे प्रभु तुम्हार हाथ धरे संतुष्ट मने जीभाग न परक गाम हदाय ঈশ্বৰে যাত্ৰাত মোক চলা তেওঁ হাতে তেৱেই মোক চলাই বিশ্বাসী आपने सुंदर समय हमें दिया और प्रभु आज जो पवित्र विश्राम बार आपने हमें दिया, इस विश्राम बार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। आपने सुंदर वचन हमें दिया प्रभु, जो आशा, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने हमें आशा प्रभु, आपने होप का बारे में आज हमें बताया है प्रभु। हाँ, हम आपका वचन को अगर हम लोग पढ़े और अगर पवित्र आत्मा से हम लोग भरे,
प्रभु इस समय आपका जो आशा हम लोग का ऊपर ओवरफ्लो होगा, होप जो है ओवरफ्लो होगा और रम्स ओवर होगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय आप आइए हमारे हर एक का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष आने दीजिए। आज जो प्रभु सुबह का समय आपने जितना भी भाई बहन को आज हमें मिलने के लिए दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, अनुग्रह और आशीष आप आने दीजिए, हर एक को आपका पवित्र आत्मा से आप भर दीजिए, ताकि प्रभु इस समय हर एक भाई बहन पवित्र आत्मा से भर सके और प्रभु आपका आशीष, आपका जो आशा है उसमें प्रभु उसमें आशा जो है वो रंच ओवर हो, वो बह के चले जाए और बड़े होए और आशीष रहने दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय आपका जितना भी भाई संतान लोग यहाँ उपस्थित है, जो भी हमें ऑनलाइन फेसबुक के द्वारा यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, हर एक का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष आने दे, हर एक का बीमार को आप चंगा करें। जो प्रभु बीमार है, डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा नहीं करता हूं प्रभु, आपका आशा उनका अंदर में आने दे, उत्पन्न होने दे, पैदा होने दे। कोई भी डॉक्टर बोलने वाला नहीं होना होगा, आप उसका जीवन में होने दीजिए, करने दीजिए, आशा को कीजिए पिता। जिसका जो बहन जो संतान होगा कोई आशा नहीं है, आप उस बहन का जीवन में आशीष कीजिए प्रभु, उसमें आशा भर दीजिए, ताकि प्रभु वो एक बच्चा का माँ बन सके, एक बच्चे का पिता बन सके, आशा भर दीजिए। जिसको प्रभु जो नौकरी नहीं मिल रहा है, जो जिसका बिजनेस नहीं हो रहा है, जो कहता है कि मेरा कोई आशा नहीं है, मेरा कोई आशा कभी होगा नहीं, वो ऐसा भाई और बहन का ऊपर आप आशीष कीजिए, उनका जीवन में कोई नौकरी या उसका बिजनेस हो सके, ताकि वो आपको धन्यवाद दे सके पिता। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें प्रभु इस वचन को बोलने के लिए आपने मौका दिया। प्रभु मैं अयोग्य दास हूँ पिता, फिर भी आपने मुझे धन्यवाद देता हूँ। इस वचन सुनने वाले हर एक का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष दे भर दीजिए पिता, कोना कोना इस वचन को जाने दीजिए, और जो भी भाई या बहन ये जो भी इसको देखेंगे, हर एक का जीवन में आशा बढ़ेंगे करना। प्रभु बहुत सब भाई बहन रुपया पैसा के लिए प्रभु और चिंता कर रहे, मेरा कोई आशा नहीं है, लेकिन प्रभु अपना सामर्थ्य उनका ऊपर उंडेल दीजिए, उनका आशा को बढ़ाइए, ताकि प्रभु वो आशा से जीवित रह सके और आपको महिमा और आदर और धन्यवाद दे सके। जितना भी प्रभु शैतान काम कर रहा है चर्च मंडली में, प्रभु उस मंडली में जिस आशा नहीं है, प्रभु उस मंडली में आप पाएंगे, प्रभु आपके साथ स्वर्ग जा सके, आप ऐसे आशीष करना पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मेरा विनती को सुना और आपने स्वीकार किया। भाई बहन को और जितना भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक को मैं आपका पवित्र हाथ में सौंपते हुए विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।